अगर आप सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं या फिर चूज कर रहे हैं, तो दिस इज अनदर पॉइंट पॉजिटिव एंथ्रोपोलॉजी कि इतना डाइवर्स और होलिस्टिक सब्जेक्ट है कि यू गेट टू रीड डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इट. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता है. Yeah, definitely. I think optional plays a major role in the success in this UPSC CSE examination. So what I did was initially I figured out 3-4 optionals for me, which I can read. I come from engineering background. I considered engineering as an optional also for some time, but then I realized कि वो काफ़ी vast syllabus है and I'll need some mentor या किसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको कवर करने के लिए. उसके बाद आप एक बुक द्विज ने बताई, एंथ्रोपोलॉजी बाय मेल्विन एम्बर की एक बुक आती है एंथ्रोपोलॉजी करके, दैट विल मेक अ वेरी नाइस फाउंडेशन. नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर मैं कोई सोर्स यूज़ कर रहा हूँ या कोई टॉपर के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ या कहीं से रेफरेंस भी यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपने नोट्स बनाऊंगा. Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, myself Asad Zubairi and this is my friend Dwij Goyal and I have secured a rank of 86 in UPSC Civil Service Examination 2022 while Dwij's rank is 2071 this year. So this was a brief introduction. I would like Dwij to introduce himself first. So hello everyone, my name is Dwij Goyal and I have secured All India rank 71 in UPSC CSE 22 and my optional was anthropology. And as I already told you that I am Asad Zubairi and my rank is 86 this year in UPSC Civil Service Examination 2022. And this is one thing common and probably the reason of coming here today in front of you is that my option is also anthropology and me and Dwij have prepared this subject together. So we are here, we are actually planning to make certain parts of this series of how to approach anthropology, what are different sources available for it. So me and Dwij followed almost similar but some different sources too. So we are going to list down that in a separate video. How to do value addition, for example, how to do a better answer writing. So these sort of things we have planned for for the students for your benefit, and we'll be releasing these in some sections or some parts. So basically, this series would be a part of would be including many videos. Yeah. And step by step, starting from the beginner's perspective, we'll proceed in the series and how to score good marks. Like I have scored 300 plus marks in anthropology. So we'll discuss bit by bit every piece of it. Yeah, so this year Dwij's score is 315 and my score is 290. And last year also we got good scores in anthropology. So I hope that you will find something helpful from our discussion today. So this is going to be a discussion about, we'll first start with Dwij, because this is a question that I'm getting from a lot of students. Why did we choose anthropology? So this was someone who is, for example, trying to figure out their optional subject. So for them, what is your approach that जब आपने anthropology लिया था, so why did you choose this subject? What were some reasons? What are some guidelines one should follow while choosing this subject? If you can elaborate on that. Yeah, definitely. I think optional plays a major role in the success in this UPSC CSE examination. So what I did was initially I figured out 3-4 optionals for me, which I can read. I come from engineering background. I considered engineering as an optional also for some time, but then I realized कि वो काफ़ी vast syllabus है and I'll need some mentor या किसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको कवर करने के लिए. So I dropped that. Then I read for some time public administration for 1 month to see that. Then I read sociology. Then I came across anthropology. So PubEd का मैंने second thing consider क्या किया कि PubEd में उतना अच्छा स्कोर आ नहीं रहा था. And for some time now, yeah. For some time PubEd में उतना अच्छा स्कोर आ नहीं रहा था. So then I had 2 options, sociology and anthropology. तो सोशो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, बट उसमें मुझे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी. लाइक आई रियलाइज आफ्टर रीडिंग फॉर 1.5 months कि आई कुड नॉट राइट अ गुड आंसर इन सोशो. अच्छा, तो you read sociology? Yeah, I read sociology for 1 month. I did not have an idea about that. You are not knowing about that. So then after that I jumped to anthropology. Another factor in the meanwhile that played a key role was कि 2017 में अनुदीप सर थे, All India rank 1. He wrote a very descriptive blog. He wrote a very descriptive blog. So मैंने भी अपने सिलेक्शन के बाद the first thing I did was कि एंथ्रो का ब्लॉग लिखा पूरा, सेम एज अनुदीप सर डिड. तो मैंने वो ब्लॉग फॉलो किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में अपने सारे सोर्सेज कवर किए थे, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे वैल्यू एडिशन करना है.
तो मुझे वो काफी हेल्पफुल लगा। तो मुझे लगा कि अब गाइडेंस भी अवेलेबल है, एक तरह से ब्लॉग अवेलेबल है, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, टॉपर्स निकल रहे हैं। उसके नेक्स्ट ईयर अक्षर जैन सर रैंक 2 थे, तो मुझे लगा कि स्कोर भी अच्छा आ रहा है, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग रियली वेल, सब्जेक्ट वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, और मेरे को पढ़ के भी काफी इंटरेस्ट आ रहा था। तो आपको लगता है कि फर्स्टली आपने जैसे बोला कि गाइडेंस, तो मेरे केस में भी ये था कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, सो आई स्टार्टेड विद मैथमेटिक्स एंड आफ्टर 15 to 20 days of reading mathematics I realized that this can this is something I cannot do. I was not able to do that. तो फिर I met Dwij because we were working together and वहाँ से मुझे anthropology का idea आया. So this is just something I'm just summing up Dwij's answer because my case it was more or less similar. If you are someone who's going to choose an optional subject which is not your graduation subject, that is the first point because हमारा graduation subject was mechanical engineering for both of us and it was relatively tough to crack exam with that subject. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट छोड़ के कुछ और लेना चाहता है और प्रोबेबली आप शायद एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू फॉर मल्टीपल रीजन। जैसे दुज ने बोला, पहली चीज आपके पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल। कौन सी बुक्स खरीदना है इसके लिए आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है। इतने सारे लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, दुज ने ब्लॉग लिखा है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर द सेम पर्पस, राइट, ठीक है। उसके अलावा विदाउट पेइंग एनीथिंग, you can have guidance without paying anything. Yeah, you can have a good guidance. It's available. And I would like to add 2 more points here कि resources तो easily available हैं ही। उसके अलावा जब हम देखते हैं ना, एक सिलेबस वाली पार्ट आता है कि आपको सिलेबस, जैसे हम लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकलिटी प्लस वो सब्जेक्टिव पार्ट, सोशो वाला पार्ट। सो उसमें वो दोनों चीजें मिल जाती हैं। जैसे सोशो में मेजरली यू विल गेट दैट सोशल डिस्क्रिप्टिव पार्ट, करेक्ट है ना, आपको But मतलब आर्ट्स यू गेट द फ्लेवर ऑफ आर्ट्स विद द फ्लिप ऑफ साइंस एज वेल। तो अगर आप ऐसे कोई इंसान है जो कि हु लाइक्स टू रीड art subject also, so you'll have a very nice time with social cultural anthropology, right. And if you're someone with a background in, for example, medical science or biology, you'll be very comfortable in reading human genetics. That's also a part of it. If you like reading archaeology, so तो ये तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं या फिर चूज कर रहे हैं, तो दिस इज अनदर पॉइंट पॉजिटिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि इतना डाइवर्स और होलिस्टिक सब्जेक्ट है कि यू गेट टू रीड डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इट, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता है, राइट। सो जस्ट समिंग अप फॉर दिस सेक्शन के आपको अगर इफ यू आर कंटेम्पलेटिंग दैट इफ यू वांट टू चूज एंथ्रोपोलॉजी और नॉट, सो आई वुड से द रीजंस दैट वी चोज इट is के guidance was easily available, resources were easily available. I had a friend who was preparing with the same subject. Okay, this is also a very nice point. Fourth, it was performing relatively well. It has performed well this year also. And lastly, जैसे दोस्त ने बोला कि interest आपका आता है उसमें. Why? Because it is so diverse. It's like an art subject with a flip of science in it. Even anthropology के अंदर भी हम discuss भी करते हैं ना कि whether anthropology is a science or arts या social science, humanities है. So anyway. So ये section was all about why should you choose anthropology. अगर जो हमने अभी आपको guidelines बताया, फिर हमने जो आपको अभी flags बताए, if you are someone जिसके लिए वो सारे ही points match करते हैं, so you can comfortably. And I think we need to discuss one more thing here. Why not to choose anthropology? Okay, yeah. Like there's some myths. There are some myths we need to burst some myths regarding anthropology. पहला myth है कि anthropology में रटना नहीं होता. हाँ, ये काफी मिथ है कि एंथ्रोपोलॉजी में रटना नहीं होता, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है और सिर्फ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। पीपल से दैट अगर आपने समझ लिया, इफ यू जस्ट आपने सिर्फ समझ लिया सब्जेक्ट को, सो यू कैन मेक इट। आई थिंक वी बोथ डिसएग्री ऑन इट, ठीक है, आपको रटना भी पड़ेगा इसमें। आई थिंक दोनों चीजें हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको चाहिए, वो तो मस्ट है किसी भी सब्जेक्ट को आपको लिखने के लिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग आंसर इन 7 minutes और 10 minutes, तो आपको जो कंटेंट डिलीवर करना है, तो उसमें आपको देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, आपको रटना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको जो एनालिटिकल आंसर आएगा उसमें दिखानी है। बट सपोज इफ देयर इज अ 10 marker, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप लास्ट में लिख रहे हो तो यू हैव ओनली रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 4 या 5 minutes में 10 marker लिखना होता है। एट दैट टाइम जो आपने रटा हुआ है, जो आपको याद है, आप वही लिखते हो, वही प्रेजेंट करते हो। तो आई थिंक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि चीज को आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, बट आप ये मत सोचना कि रटना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, बिकॉज आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें, बिकॉज इन मेंस देयर इज नो टाइम टू रिकॉल, राइट। एवरीथिंग शुड बी एट योर फिंगर टिप्स एंड टू डू दैट यू विल हैव टू लर्न सम थिंग्स बाय हार्ट। सो ये तो पहला मिथ हमने बस किया। सेकंड मिथ मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस काफी छोटा है, शॉर्ट है, काफी शॉर्ट सिलेबस है, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस ले लेते हैं एंड विल कवर इट।
सो उसमें मुझे लगता है कि एक चीज जो है कि छोटा सिलेबस है, लोग सोचते हैं सिलेबस डेफिनेटली काफी ऑप्शनल्स हैं जिनका बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बट इफ वी सी द पेपर्स जो पास्ट 2-3 साल के पेपर हैं थ्रो के, तो इट इज डिमांडिंग ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इन Very सर्टेन nice सेक्शंस. Correct. सो इट्स नॉट लाइक कि आप 3-4 महीने में करके निकल जाओ एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स. डेफिनेटली अगर आप एक सिलेबस वाइज उसको कवर कर रहे हो तो यू कैन गेट 240-250 मार्क्स. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग ऑन दैट ये पार्ट. करेक्ट है. जैसे द्विज बोल रहा है ना कि आपने अगर बेसिक्स कवर कर रखे हैं of your syllabus which are relatively shorter, so I would say reaching that range of 240 is a path जो कि बाकी सब्जेक्ट से शायद थोड़ा छोटा हो जैसे सकता सपोज है. इफ आई टॉक अबाउट PSIR, तो PSIR में अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू कैन गेट बिलो 200 एज वेल. एंथ्रोपोलॉजी में शायद ऐसा नहीं एंथ्रोपोलॉजी में शायद ऐसा नहीं है कि इफ यू आर वेल रेड, मतलब आपने चीजें कवर की हैं, आपने पेपर कंप्लीट किया है, तो 240-250 यू कैन गेट. But if you want to go beyond that, for example, Advait's का score इतना amazing है, 315, I got 290. अगर आपको if you want to go beyond that, then you'll always have to read more. You have to put in that extra amount of effort. You have to do the value addition. As हम लोग अभी आगे आने वाले टाइम में value addition पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, आंसर राइटिंग पे भी बनाने वाले हैं, and even we are going to do some workshop or answer writing for anthropology on plus subscription too. So that we'll do in due time. But summing it up again, कि जैसे द्विज ने बोला कि छोटा सब्जेक्ट है, बट इफ यू वांट टू स्कोर रियली वेल you'll have to put in that extra amount of effort. तो ये दूसरा myth था जो इसने बस्ट किया. I think any other myth about this subject is one of the things that I missed in positives is कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है comparative to बाकी other subjects. Right. As I said कि साइंस और ह्यूमैनिटीज का एक मिक्स है, तो वो इस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिविटी दोनों. I think this will come in a part of why choose anthropology, right? That you can have exact answer to certain question. For example, if he's asking you about genetic imprinting, okay, so there's only one answer to it. There are no multiple interpretations. If someone is asking about archaeology question, कि कोई site को explain करना है, question. Then it's a factual question. And you know these questions will get you marks because में आपको और examiner का जो thought है ना वो converge करता है एक जगह पे, and that's when you get marks. So anyway, this was the second thing that we talked about. Now अब ठीक है, मैंने anthropology choose कर लिया द्विज. Okay. Now tell me your approach, then I'll tell you my approach of how did you start reading the subject, because none of us had actually taken any classes for this subject, right? Right. We have written test series but we have not taken classes. Yes. So आपने जब choose कर लिया था anthropology, then what was there in your mind that अब मैं start कैसे करूं? जो लोग anthropology choose कर चुके हैं and they're watching this video, it will help them. That द्विज आपने कैसे subject को approach किया? Can you talk about it? Alright. As I mentioned कि मैंने अनुदीप सर का सबसे पहले blog पढ़ा था. तो द फर्स्ट थिंग ही ऑल्सो डिड वाज कि एम्बर एंड एम्बर करके एक बुक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. तो मैंने वो बुक उठाई थी आउट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे सर ने भी बताया था, अनुदीप सर ने. तो मैं जो सोशो कल्चर वाला पार्ट है, लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप, सो आई रेड ऑल ऑफ दैट. मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड मुझे लगता था कि चीजें बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, कि आई नेवर न्यू अबाउट कल्चर रिलेटिविज्म, आई नेवर न्यू अबाउट दिस होलिस्टिक आउटलुक क्या होता है, कैसे चीजों को पार्ट और होल में कंसिडर करके देखते हैं. So वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि like I get to know something which I was not knowing, कल्चर, सोसाइटी के बारे में. So मतलब इसको मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ. द्विज का कहना है कि पहले आप सिलेबस देख लें, फिर आप कोई एक ऐसा ब्लॉग उठा ले, जैसे द्विज का ब्लॉग है, अनुदीप सर का ब्लॉग अभी भी एग्जिस्ट करता है, मेरा कंटेंट है, किसी भी टॉपर का आपको हेल्पफुल लगे, आप उठा के सोर्सेज अपने देख लीजिए. एंड हम लोग भी उसके वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारे सोर्सेज क्या थे. उसके बाद आप एक बुक द्विज ने बताई, एंथ्रोपोलॉजी बाय मेल्विन एम्बर एंड एम्बर की एक बुक आती है एंथ्रोपोलॉजी करके, दैट विल मेक अ वेरी नाइस फाउंडेशन ऑन विच यू कैन एक्चुअली बिल्ड द सिलेबस ऑफ एंटायर सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी. तो चलिए, आपने एम्बर पढ़ ली, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? आफ्टर एम्बर अगेन जो सोर्सेज हैं, एंथ्रोपोलॉजी के जो सोर्सेज हैं, कहाँ से क्या कवर करना है, या बुक का कोई नाम है, सपोज आई यूज वन बुक पीनाथ फॉर सम पोर्शन, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज किस पोर्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. तो देयर आफ्टर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वो पहले वो सोर्सेज से वो पढ़ा, ठीक है. इन द फर्स्ट रीडिंग आई डिडंट मेक नोट्स, तो मैंने वो पहले वो वीडियो से पढ़ा, मतलब जो कंटेंट था उससे पढ़ा, उसको समझा. सेकंड रीडिंग में मैंने उसमें अंडरलाइन किया कि मुझे नोट्स में क्या चाहिए उसमें से. देन आई सॉ द सिलेबस, कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन्ड है. सपोज आई रेड 100 थिंग्स बट सिलेबस में 50 थिंग्स मेंशन्ड है, सो आई विल फोकस फर्स्टली ऑन दोस 50 थिंग्स ओनली.
कि मैं हर चीज का जो एक्स्ट्रा एडिशन मेरा है अप्रोच भी ये था उसका नोट्स नहीं बनाऊंगा मैं. करेक्ट. I'll सो ये concentrate- नोट मेकिंग में भी हम लोग ऐड करने वाले हैं बाद में. द्विज ने दूसरा पॉइंट बोला कि आपने जब मेल्विन एम्बर और एम्बर की बुक पढ़ ली है, वंस यू आर डन विद दैट बुक, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू गेट योर बेसिक बुक्स राइट. ठीक है, द बुक्स दैट वी विल लिस्ट वेरी सून. You get those books and you start reading them book and do not make notes in the very first reading. And Right. also keep your syllabus by your side so that you know what to read and what not to read from that book. Because a lot of Right. times, I think in my case also, a lot of books I did not have to read cover to cover. Okay, there's only some things that you Some that things you have to only read you from have those to books. pick the portions of the syllabus Exactly. which So you want make to. notes only for the terms and the topics that are mentioned in the syllabus. Just don't start writing the notes right in the beginning of first reading of your syllabus. So द्विज और मैंने दोनों ने किया था. एम्बर एंड एम्बर पढ़ी थी. Then we went to the basic books. Basic books. And for each topic or each chapter or a group of chapters, there are certain books involved. So you read them once, you read them twice, and then you keep your anthropology syllabus with you. Okay. And then the terms that are mentioned in that syllabus, you can actually jot them down in your notes. Right. ठीक है. And this process, I think यही दो process के बाद आप you'll get in the groove You'll of get in the anthropology. you'll get in the groove of anthropology, and thereafter you'll get to understand the things. जब आप उसमें PYQs देखोगे, you'll हाँ. get to know this more is things like what another is being thing, yeah. asked. Please be very mindful about the previous year questions, because it's often said that in optional subject, in all optionals, there's a very high frequency of repetitive nature of questions Right. from the previous year. So keep your syllabus by your side, keep PYQ. I think there are a lot of books available which give topic-wise PYQ Topic-wise also. PYQs. So yes. get that book. Okay, and then just you see what kind of questions is UPSC asking. So you'll find some areas which UPSC is focusing now. So read those areas well. Right. So I think in this way you can start approaching this subject, that you form the foundation, do one or two Do one or two readings, reading. keep your syllabus and PYQ by your side. And do not go for value addition in the very first In the very instance of first second, making yeah. the notes. We are That's going a to- disaster. That's a disastrous thing, because what I have seen कि आप पहले रीडिंग में suppose you are reading chapter 2, so what people used to do कि पहले ही बार में नोट्स बनाएंगे और उसी में वैल्यू एडिशन करके एक साथ हाँ, कर लेंगे. correct. And it takes lot of time कि नहीं, एक also- महीना केवल चैप्टर 2 में ही लग गया. Also मुझे लगता है जैसे वैल्यू एडिशन है ना, उसका रोल तब आता है जब आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए. Right. You should have the foundation for it. So this is another point when you're approaching a subject. Please don't run after value addition, because this is probably the last stage of reading anthropology in the Right. UPSC, right? It's not one of the first stages. So when you start, you have to build a good foundation, and only after that foundation is strong enough, you can understand what exactly will add value Right. to this answer. And value addition is actually about interlinking. Right. कि how you interlink the things. And it Interlinking can- diagrams, current affairs, Right. case studies, and वो आपको तभी पता लगेगा जब you have already gone through we have one already syllabus gone through the once. syllabus and we have covered it very nicely. और उसके वो भी जब ज्यादा इफेक्टिव होता है when you have remembered it. आपने Correct. 2 बार पढ़ लिया, आपको पता है कि कौन सा टॉपिक किस पार्ट में लाई कर रहा है, कहाँ यूज हो सकता है. Then only you can go for value addition. Correct. So I'll just sum up this portion also of how to approach the subject once you are done with the basics. The first, as Dwaj and I both mentioned, read Anthropology by Ember and Ember. It will develop the interest and form your foundation. Then start reading your basic sources. Okay. In basic sources, you keep your PYQ as well as your syllabus by your side, so that you know what to read and what not to read and what to put in your notes. Third, do not start note making right in the very first reading. Go through the book once or twice and then you do the note making part. Fourth, do not run after value addition material right away. You have to wait, because value addition comes towards the end of reading a subject, because then you will be able to interlink better and your foundation will be formed. I think there's one don't that I want to add to approaching the subject. Please don't be lazy and don't rely on one-stop solutions for this subject. So there are a lot of books in market which are actually good books. I will not say that they are bad books, but even the author of those books have written that only once you're read the basic books, you can use these books to understand answer writing. You can use this book to add value to your answer, but do not use these one-stop solutions to anthropology as your basic foundation material. Right? I think Dwaj agrees on it, right? I agree on this completely. और एक अभी जो चल रहा है कि लाइक डायरेक्टली कॉपिंग द टॉपर नोट्स. Correct. आई थिंक उसका भी एक है कि आप कुछ पोर्शंस ऐसे हैं वेयर यू फील कि वो नोट्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप वहां पर ऐड कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. इफ यू आर Absolutely. है ना, इफ यू आर टेकिंग टॉपर नोट्स एज वेल, तो आप उसको रेफरेंस मान के खुद के नोट्स ऐड करो उसमें. हाँ, see, as long as you have not made your own notes, you'll not feel like reading them. जब अपने हाथ से इंसान मेहनत करता है ना, राइट 600 पेज 500 पेज लिखने की, तो उसको याद करने का मन भी करता है. So please
make your own notes, rely on the basic sources of anthropology that we'll be listing. Use one-stop solution or question answer book only as a reference to develop answer writing or to get value addition content. Okay, so यहाँ से अभी हम लोग जैसे द्विज ने आपने बात किया अभी नोट्स के बारे में, ठीक है. So I would like to move toward note making. कि भाई because this is one of the very important question that people say, or how to make effective notes in anthropology. Because I think हम दोनों ही केस में ऐसा था कि notes were our क्या कहते हैं उसको, जो तलवार लेके जाता है ना, जो योद्धा किसी भी वॉर में. सो आप जब वॉर में जा रहे हो, व्हेन यू गोइंग फॉर अ वॉर इन मेंस, ठीक है, तो नोट्स ही आपकी तलवार है. अगर आपको तलवार नहीं होगी तो आप लड़ नहीं पाओगे. सो दिस सेक्शन इज फॉर दिस इज कॉल्ड हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी. द्विज, आपका अप्रोच क्या था? देन आई विल टेल माय अप्रोच. ओके, सो माय अप्रोच वाज वेरी सिंपल कि नोट्स कैसे बनाने हैं. अगर मैं कोई सोर्स यूज कर रहा हूँ या कोई टॉपर के नोट्स यूज कर रहा हूँ या कहीं से रेफरेंस भी यूज कर रहा हूँ, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपने नोट्स बनाऊंगा. लाइक इफ आई एम राइटिंग अ आंसर तो मैं अपने नोट्स बनाऊंगा. तो उसमें दो चीजें कैसे मैंने नोट्स बनाए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीवाईक्यूज थे, मैंने अपने नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पीवाईक्यू बेसिस पे बनाए. सपोज इफ आई एम रीडिंग सम चैप्टर, तो उसमें जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैंने उनके नोट्स बनाए. मैंने उनको रिपीट नहीं किया. सपोज कोई क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, बट एक बेसिक थीम होता है उस क्वेश्चन का, तो मैंने उस बेसिस पे सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिया उस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स. ठीक है. सो एक पॉइंट आपको यहाँ से देखने मिलता है कि आप जो नोट बना रहे हो, तो योर नोट कैन बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, राइट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. आई थिंक अगर आप सारे क्वेश्चन लिखोगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. एंड उसके अलावा आप बताइए नोट में क्या लिखना चाहिए, नोट्स में क्या नहीं लिखना चाहिए नोट्स में, एंड वैल्यू एडिशन कैसे लिख सकते हैं आप नोट्स में, और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक नोट्स क्या होता है कि आपके नोट्स डेवलप होते हैं टाइम के साथ, एक बार में नहीं बनते नोट्स. सो एनीवे, सेकंड पॉइंट मैं पूछ रहा था क्या लिखना चाहिए, व्हाट वन शुड राइट एंड व्हाट वन शुड नॉट राइट. सो जैसे कंटेंट में बता रहा था कि ऑर्गेनिकली, आप बोल रहे थे कि ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है आपके नोट्स में, और जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि हमें पहले बेसिक नोट्स बनाने हैं, उसके बाद वी नीड टू गो फॉर वैल्यू एडिशन. तो हमें पहली बार में जब बनाने हैं, आफ्टर 2 रीडिंग बेसिक नोट्स बनाने हैं, फोकस ऑन दैट ओनली. तो बेसिक नोट्स का मैं बताता हूँ आपको. जब आप उसमें एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, सो यू कैन राइट 2-3 डेफिनेशंस कि 2 डेफिनेशन तो एटलीस्ट आप लिखिए उसमें. बिकॉज व्हाट हैपेंस समटाइम्स कि एक डेफिनेशन कहीं पर मिसफिट होती है. सपोज कोई स्कॉलर की डेफिनेशन है एंड क्वेश्चन इज बिट एनालिटिकल, सो वो मिसफिट हो सकती है. वो डेफिनेशन यहाँ पे कोई डिफरेंट डेफिनेशन आ सकती है. बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में कोई डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है. There are different interpretations by different scholars. So जैसे family की definition में आप कई definition होती है, and they have written कि no definition actually defines family completely, है ना. तो आप 2 या 3 डेफिनेशन अपने पास रखिए. सपोज आप इसकी लिख रहे हैं, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि सबके लिए. So this is a good point. तो पता है ये मैंने नहीं कर पाया था. So this is something that I am learning from him today, that you should have 2-3 interpretations of the same definition from different scholars, so that because UPSC is asking very analytical and different questions now, so you should use a definition that fits in that question. For example, शायद जिन्होंने पढ़ा होगा, मुझे अभी एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे आपका एक वो टॉपिक था ना जिसमें शेल्डन का मेथड था और एक सोमैटोटाइपिंग था. तो सोमैटोटाइप की डेफिनेशन एक शेल्डन की डेफिनेशन है और एक हीथन कार्टर की डेफिनेशन है. तो जैसे इस साल ही आस्क्ड अबाउट हीथन कार्टर, सो अगर आपको हीथन कार्टर की डेफिनेशन याद होगी, इट विल मेक अ बेटर इम्पैक्ट. सो यू कैन हैव 1 or 2 definitions for each topic that you are writing in your notes. ठीक है, जरूरी नहीं आपको 10 स्कॉलर की डेफिनेशन याद हो. नहीं, वो नीडेड नहीं है. But just write the part that you think you have to reflect or write in the exam, final examination. What I used to do कि कुछ डेफिनेशन मुझे अच्छी लगती थी, वो इजी होती है लर्न करने के लिए. तो आप अपनी मेमोरी के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको लर्न करने के लिए क्या इजी पड़ेगा. तो उस अकॉर्डिंग में, या कोई फेमस स्कॉलर की है, सपोज मेलिनोव्स्की ने कुछ बोला है, तो देन आई यूज्ड टू राइट. तो लिखना पड़ेगा. नाउ यू नीड टू नो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था फैमिली को लेके या मैरिज को लेके. तो मैं वो लिखने की कोशिश करता था अपने नोट्स. ठीक है. सो द्विज ने पहला बताया हमको कि द्विज के भी और मेरे भी दोनों के नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थे, मोस्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, और रिपीटेटिव हम लोग नोट्स नहीं बनाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन व्हिच केम इन 2015, अगर उसी थीम पे क्वेश्चन 2019 में आया था तो वील जस्ट राइट इट वंस, ठीक है, फ्रॉम द सेम टॉपिक. थर्डली द्विज टोल्ड, एंड इवन दिस अप्लाइज टू मी टू, कि आप एक डेफिनेशन मत लेके जाओ, 1-2 डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए. एंड स्पेशली बहुत ही अगर फेमस स्कॉलर्स हैं, जैसे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की हो गए, आपके जैसे पेपर 2 के लिए एस.सी. दुबे हो गए, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास हो गए, तो इनके लिए यू शुड हैव एटलीस्ट डेफिनेशन दैट दे हैव गिवन, because examiner has already read these important anthropologists and they want to know what you know about them. So ये definition आप अपने नोट्स में बिल्कुल लिखें. फोर्थली, लेट्स डिस्कस अबाउट कि ऑर्गेनिक नोट्स क्या होते हैं. सो आपने ना नोट्स जो है वो कंसाइज फॉर्मेट में बनाने हैं,
आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना सकते हैं जो आपके PYQ पे बेस्ड होंगे. एंड अभी जैसे आई विल स्टार्ट विद कि मेरा आइडिया क्या है ऑर्गेनिक नोट्स का, देन द्विज विल ऐड टू इट. सो क्या होता है ना, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आई जस्ट फील लाइक कि आप नोट्स को हमेशा बेटर बना सकते हो. अगली रीडिंग में नोट्स और बेटर हो सकते हैं, उससे अगली रीडिंग में और बेटर हो सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली जो लास्ट कंटेंट आपके पास आना है, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव गॉन थ्रू द सब्जेक्ट और हाउ मच टाइम हैव यू बीन विद द सब्जेक्ट. सो इसलिए क्या करो, आप सेकंड रीडिंग में आप जा रहे हो, आपको कुछ अच्छा, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो पूरा सिलेबस. नाउ सेकंड रीडिंग में फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग समथिंग इन पेपर 1 अबाउट फैमिली, ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी रेड पेपर 2. अब मुझे कोई इंडियन फैमिली का कुछ जो है रिलेशन आ गया वहां से, या फिर किसी ट्राइब का एग्जांपल आ गया अबाउट फैमिली, सो मैं उसे इंटरलिंक कर दूंगा एंड आई विल राइट इट इन माय नोट्स. सो इन माय केस हाउ डिड आई मेक माय नोट्स ऑर्गेनिक? आई यूज्ड टू राइट माय नोट्स विद हैंड. मैं ऑनलाइन नोट्स ही बनाता था एंड उसके ऊपर मैं एक स्टिक ऑन नोट से आई विल राइट व्हाटएवर आई एम गेटिंग, एनी न्यू कंटेंट, एनी न्यू केस स्टडी, एनी रेलिवेंट डायग्राम, प्लीज हैव इट एट द सेम पॉइंट. अलग अलग जगह नोट्स मत बनाओ, एक ही नोट्स के ऊपर लेयर्स बनाओ. Make it organic. Right. That was my approach. Dwij, what was your approach for organic notes? So मेरा approach क्या था कि suppose I am using A4 sheet, मैं A4 sheet use करता था. तो what I used to do कि आपके पास जो A4 sheet का पेज होता है तो उसमें I used to draw a line. Okay. ठीक है. तो जो UPSC होता है, UPSC का जो पेज होता है उसमें दोनों तरफ लाइन होती है. तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है आंसर लिखने के लिए. तो मैं एक बड़ी सी लाइन इधर ड्रॉ कर लेता था कि एक इतने स्पेस में ही मुझे नोट्स बनाने हैं, बेसिक नोट्स बनाने हैं, और ये इधर वाला जो पोर्शन है ये वैल्यू एडिशन, ये खाली, ये मतलब ऑर्गेनिक नेक्स्ट रीडिंग पे होगा, उसके नेक्स्ट रीडिंग के लिए. एग्जैक्टली. तो मैंने जब मैंने मेरे बेसिक नोट्स कंप्लीट हो गए, नाउ सपोज आई एम रीडिंग इट सेकंड टाइम या मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो जो उसके बगल में है, जो उसके बगल में मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है वहां पे लिखूंगा मैं. उसके बाद मैंने उसमें क्या किया कि जब आप 3-4 रीडिंग कर लेते हो, 5 रीडिंग कर लेते हो, रिवीजन भी कर लेते हो, तब आपको जो कंटेंट होता है वो बहुत रो कंटेंट, रो फॉर्म में पड़ा होता है आपके पास, जो आपके नोट्स में पड़ा होता है, जो इस साइड पड़ा होता है, क्योंकि आपने वो थीम पे नोट्स बनाया है. आप क्योंकि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट भी आ सकता है उससे, है ना. ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सेम ही PYQ रिपीट हो जाए, बट क्वेश्चन कंटेंट सेम रहेगा, आपको कंटेंट को यूज करना होगा. तो मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो साइड वाला पार्ट है, एक तो उसमें वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट आ गया, उसमें मैं आंसर का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या इंट्रो होगा, क्या बॉडी होगी, और बॉडी के क्या सब हेडिंग्स होंगे, क्या कंक्लूजन हो सकता है. तो शॉर्ट में मैंने वहां पर लिख लिया. मतलब आप नोट्स बना रहे हो, आपके साथ साथ आप स्ट्रक्चर भी बना रहे हो, स्ट्रक्चर भी बना रहे हो. तो आपकी एक तरह की एक ड्राई रन हो रहा है आंसर राइटिंग का, व्हाइल इवन मेकिंग द नोट्स. राइट. ठीक है कि आप आंसर भी बना रहे हो और उसका स्ट्रक्चर भी बना रहे हो, बट स्ट्रक्चर आफ्टर 2-3 रीडिंग जब आप वैल्यू एडिशन. इनिशियली डोंट रन बिहाइंड इट. दिस इज वन थिंग जो पूरे सब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा, पेशेंस के साथ. ठीक है, टाइम निकालो सब्जेक्ट के साथ, फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. गो. मुझे भी याद है कि देयर वर टाइम्स व्हेन मी एंड द्विज यूज्ड टू, हमारा एक ग्रुप भी था साथ में, राइट. सो वी प्रिपेयर्ड दिस सब्जेक्ट टुगेदर. सो वी हैड दिस ग्रुप इन व्हिच यूज्ड टू पुट ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. कोई अच्छे लिंक आया, कोई इंटरलिंकिंग हुई. डू यू रिमेंबर आफ्टर मेंस वी यूज्ड टू इंटरलिंक एंड पिन कंटीन्यूअसली. व्हाट ही डिड वाज कि जब आफ्टर प्री और मेंस का जो टाइम होता है, तो हम लोग साथ में बैठ गए और जितना भी कंटेंट इकट्ठा किया था रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी, उसको हमने सारा ऑर्गेनाइज किया, और किस चैप्टर से रिलेट हो रहा है, किस टॉपिक से रिलेट हो रहा है, वो लिख लिया. सो कि अब हमें पता है कि अगर हमें कोई न्यूज आर्टिकल मिला है या कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल है, तो हम उसको किस आर्टिकल मतलब किस सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं. कि इवन कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कंटेंट ना कंक्लूजन में यूज हो सकता है, कुछ बॉडी में यूज हो सकता है, कुछ इंट्रो में यूज हो सकता है, लाइक दैट. सपोज अगर आप सोमेटो टाइपिंग लिख रहे हैं तो आपके पास कुछ अच्छा कंटेंट मिल गया, सो यू कैन राइट दैट इन इंट्रो, है ना, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. पुराने वाले नोट्स को ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट ये मत मान के चलो कि मैं अब यही पढ़ूंगा. नहीं. यू कैन ऑलवेज नो अ न्यू थिंग एंड यू कैन ऑलवेज रिप्लेस द प्रीवियस डेफिनेशन विद अ न्यू डेफिनेशन. अच्छा, मैं एक और अप्रोच यूज करता था जिसमें कि फॉर एग्जांपल स्कॉलर्स के नाम बहुत जरूरी होते हैं ना. सो आई यूज्ड टू ईदर राइट इट विद अ डिफरेंट पेन, और या फिर मैं उसको एक बॉक्स कर देता था, बिकॉज आपको मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी होती थी. तो जब मैं चलाता, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू रिमेंबर माय नोट्स, तो मुझे वो चीजें हाईलाइटेड दिखती थी. So you can use this also. Even I used to scholar name, कि जो स्कॉलर नेम है, बुक का नेम है, उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, या मतलब उसको अंडरलाइन कर दिया, या बॉक्स बना दिया, तो अच्छा रहता है कि एग्जामिनर को दिख जाता है कि यू हैव मेंशन्ड दिस. इवन क्योंकि एग्जामिनर ऐसे धीरे धीरे कॉपी तो चेक नहीं करता होगा, मुझे लगता है, बट जैसे भी कॉपी चेक हो रही है आपकी, तब स्कॉलर अगर वो प्राइमरी फेस से भी अगर एग्जामिनर देखेगा, so he will get to know कि you know the things, you know the things. That is the most important. आपने इसको systematically arrange किया है, आपने scholars डाले हैं, he will get to know. Correct. तो ये I think notes के ऊपर ये एक अच्छा discussion हो गया. I think people will get an idea कि आपको concise notes बनाने हैं, PYQ format में आप notes बना सकते हैं. ठीक है. उसके बाद organic notes बनाने हैं. Do not take your notes
एज समथिंग एक बार बन गया तो परमानेंटली सही हो राइट गया, राइट आई थिंक वो रिप्लेस करते रहो काफी लोग मिस्टेक करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा तो एक ही बार में और पूरा फिर हो उसके गया बाद जाएंगे नहीं और वैल्यू एडिशन भी साथ में कर लेंगे, Correct. तो आई थिंक वो एक सही अप्रोच नहीं होती है। ठीक है। तो अपने नोट्स उतने ही बनाओ जितना आप एग्जाम में लेके जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप 2000 पेज के नोट्स बना पाओगे तो इट वोंट हेल्प यू, आई बिकॉज थिंक वो काफी एक मिसकंसेप्शन भी है और मार्केट में काफी चलता है कि किसी टॉपर के नोट्स आ गए हाँ। तो अच्छा इस बात से ये मुझे याद आता है कि मैंने आज तक द्विज के नोट्स नहीं देखे और द्विज ने आज तक मेरे हाँ, नोट्स नहीं देखे। हम लोग पिछले 4 साढ़े तीन साल तैयारी साथ में Right. कर रहे हैं, वी हैव नेवर सीन ईच अदर्स नोट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑन हाउ टू मेक नोट्स, वी हैव डिस्कस्ड वैल्यू अबाउट एडिशन कंटेंट वैल्यू हमने साथ एडिशन में क्या किया है होगा, कि क्या क्या ठीक कर है। सकते हैं, बट इसके हाउ नोट्स एंड मेरे नोट्स दोनों काफी ऐसे हैं, different. हमने आज तक नहीं देखे। नहीं सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो पिक अप। बिलीव इन योर ओन प्रोसेस, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स पे भरोसा रखो, दूसरे के नोट्स से सीख सकते हो तुम, बट डू नॉट यूज इट एट वन पॉइंट सोल्यूशन। राइट So I think which we have covered these 4 important parts कि हमने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज किया, किसको करना चाहिए चूज, क्यों नहीं चूज क्यों करना नहीं चाहिए, choose या करना फिर चाहिए। व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसको अप्रोच कैसे करना है, क्या सोर्सेज हैं, उनका भी हम लिस्ट बनाएंगे, बट स्टार्ट कैसे करना है सब्जेक्ट को, एंड लास्टली इफेक्टिव नोट मेकिंग कैसे हो सकती है। राइट नाउ अभी जो सब्सिक्वेंट हमारे वीडियोस इस सीरीज के आने वाले हैं उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाई वैल्यू एडिशन, हाउ टू डू वैल्यू एडिशन, हाउ टू रिपोर्ट वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स, इवन वी विल डिस्कस कि हम सेक्शन वाइज नोट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग आल्सो, सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग आल्सो। आई रिसीव्ड क्वेरीज की आर्कियोलॉजी के नोट्स कैसे बनाने हैं, बिकॉज़ काफी वास्ट होता है, बिकॉज़ कितने नोट्स आप बनाने हैं। एंथ्रोपोलॉजी को मानो कि आप ये 3-4 सब्जेक्ट टाइप के हैं, लाइक जेनेटिक्स एक डिफरेंट सेक्शन है, Correct. आर्कियोलॉजी डिफरेंट सेक्शन है, सोशल अभी लिंग्विस्टिक अलग निकल के आ रहा है पिछले 5-6 साल से। सो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैल्यू एडिशन, कैसे करते हैं, क्या सोर्सेस हैं, क्या तरीका है नोट्स बनाने का, कैसे आंसर में लिखना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आंसर राइटिंग, दैट टू सेक्शन वाइज, of how to write an answer for genetics, how to write answer for archaeology, how to write an answer for sociocultural anthropology, and ultimately we are going to take some more content. We'll also do some workshops on Plus subscription, so that will come in due time. Thank you so much, Dwij, for this interaction. I am Thank you so also much. getting to know something new about this subject every day and about the preparation. I am very sure that people who are watching us will also get some benefit. Yeah, I'm happy to share Comment. that here. Yeah, so we'll just get back with some more content. Until then, I hope you guys are preparing well, and please keep reading and please keep working hard. We wish you the very best for the The very upcoming best. means and thereafter. Thank you so much. Thank you so much.